دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالت حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن رضا سیفی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں رضا سیفی۔ ناظرین، آج اس وقت پورے ملک میں چاہے قومی اسمبلی کا فلور ہو یا اس کے باہر اگر بات ہو رہی ہو تو حکومت کی طرف ایک بڑا الزام عائد کر رہی ہے اپوزیشن، اور پورے ملک میں یہ گونج نظر آئی کہ حکومت نے کیوں کلبھوشن کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، کیوں کلبھوشن یادیو کیس کے اندر جو ہے حکومت کی جانب سے درخواست جو کی گئی ہے اس میں کلبھوشن یادیو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی استدعا کی ہے۔ آخر اپوزیشن سوال کرتی ہوئی نظر آئی کہ کلبھوشن یادیو کو کیوں لاڈلا بنایا جا رہا ہے۔ حکومت ایک بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی سہولت کار کیوں آخرکار بنی ہوئی ہے؟ یہ وہی اسپائے ہے، یہ وہی دہشت گرد ہے، یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں پہ ہزاروں بے گناہ پاکستانیوں کا خون ہے، جس کے سر پر اور جس کے حوالے سے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو یہ کہتی تھی کہ جی نواز شریف جو ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم تھے ان کے حوالے سے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتی تھی، ساتھ ہی بار بار اپنی باتوں میں، اپنے جلسوں میں، مختلف فورمز پہ بار بار یہی بات کرتی تھی کہ جی کیوں جو ہے کلبھوشن یادیو کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ بہت نرمی برتتی ہے، اور جہاں آئی سی جے کی بات اگر میں کروں یعنی کہ عالمی انصاف عدالت کی بات کروں تو وہاں پہ بار بار یہی بات ہوتی تھی کہ جی کیوں آخرکار جو ہے وہ اس کو وہاں تک رسائی ملی، وہاں تک کیس گیا، کیوں جو ہے وہ پروسیکیوشن ویک رہی۔ ماضی میں اس طرح کی ایلیگیشنز ہم بارہا سنتے رہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جب وہ اپوزیشن میں تھی، اور اب وہ کٹہرے میں نظر آ رہی ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو ہے ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پی ٹی آئی نے روایتی طور پر کلبھوشن کے معاملے کا الزام بھی مسلم لیگ نون پر عائد کیا اور یہی سامنے نظر آیا، جبکہ اپوزیشن جو ہے فلور پر آج نیشنل اسمبلی کے یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ اس ساری صورتحال پر جو ہے وہ حکومت فضول قسم کے جواز پیش کر رہی ہے۔ کلبھوشن جبکہ مانتا ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتا تھا، پی ٹی آئی این آر او کا جواز کیوں پیش کر رہی ہے؟ بلاول صاحب نے یہ کہا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ آئی سی جی کے قانون کو نہیں مانتے تو پاکستان کے قانون سے این آر او تو نہ دیں۔ این آر او کی گونج آج بھی فلور پر رہی، ساتھ ہی جہاں پہ فلور پر این آر او کی گونج رہی وہیں پہ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف نے بھی اس بات کی انڈیکیشنز دی کہ حکومت بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی سہولت کار کیوں بنی ہوئی ہے اور قانون سازی کر کے کلبھوشن کو کیوں رعایت دی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخرکار اس ساری صورتحال پہ اور اس ساری ایشو پہ پہلے کی حکومت کو بھی جو ہے وہ سامنا تھا تنقید کا اپوزیشن کی، اور اس وقت کی موجودہ حکومت کو بھی اپوزیشن کی تنقید کا سامنا ہے، اور یہی وہ پارٹیاں تھیں جو حکومت میں تھیں یا اپوزیشن میں تھیں، یعنی کہ موقف چینج ہو گئے اپنے اقتدار میں آ کے، اور پھر اپوزیشن کا وہی سٹانس آتا ہے چاہے وہ کوئی بھی اپوزیشن کی پارٹی ہو، جو کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا سٹانس ہے۔ لیکن کیا سوال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کلبھوشن یادیو کے حوالے سے کیا سچویشن ایمرج ہو سکتی ہے؟ جبکہ دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج آپ کو میں بتاؤں کہ جی ٹائمز آف انڈیا میں جو لیڈ آج کی سٹوری لگی ہے اس میں لکھا ہے کہ انڈیا ڈسٹینسز اٹ سیلف فرام پاکستان موو ٹو گیٹ کلبھوشن یادیو لائر۔ بہرحال یہ ایک بڑی عجیب سی ساری سچویشن ایمرج ہو رہی ہے، اسی حوالے سے بات کروں گی میں۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے جی محمد عبداللہ حمید گل صاحب ہیں، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں اور سربراہ جوانان پاکستان و کشمیر کا، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو سو ویری مچ سر فار جوائننگ اس۔
बहुत शुक्रिया आपका और अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे बताइएगा, वालेकुम अस्सलाम, जिस तरह से आज हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन और हुकूमत में एक बहस छिड़ गई है कुलभूषण यादव के हवाले से, और हुकूमत के इस स्टांस के बाद जो उसने कल किया, यानी कि उन्होंने कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, और उसके बाद जो है आज एनआरओ की गूंज थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे। ये आप चूंकि जाहिर सी बात है एक बड़ा मुशाहिदा रखते हैं सारी चीज़ों पे, बड़ी गहरी निगाह है आपकी, क्या समझते हैं आप इस सारी सिचुएशन के बाद? चूंकि आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से बताया भी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो कहा है कि इंडिया ने अपने आप को अलग कर लिया है इस मूव से, कोई बात भी नहीं हो रही है, वो इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये सारी सिचुएशन इमर्ज हो रही है। कितना सेंसिटिव मामला है ये, और हुकूमत को किस तरह से इसको टेकन अप करना चाहिए? बेटा बहुत शुक्रिया आपका। देखें, कुलभूषण का जो मामला है वो बहुत संगीन नौयत का है। पहली बात यह है कि दूसरी जंग अजीम के बाद एक कर्नल लेवल का जो ऑफिसर था वो एक दहशत गर्दाना एक्टिविटी के अंदर, जिसको अंग्रेजी में सबवर्सिव एक्टिविटी कहते हैं, खुफिया जासूसी के काम, ये उसमें पहली दफा है कि दूसरी जंग अजीम के बाद इतना बड़ा अफसर जो है किसी मुल्क के अंदर पकड़ा गया। अब ये बात ठीक है कि कुलभूषण यादव जो है उसके बाद आपको मालूम है उसके ऊपर बाकायदा मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हुआ, और उसके बाद उस वक्त के जनरल राहील शरीफ साहब ने इनको, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस टाइम पे नून लीग की, और उस टाइम पे सजाए मौत जो है वो सुनाई गई। उस टाइम पे भी सजाए मौत के बजाय इसके कि उसी वक्त उनको हैंग किया जाता, जिस तरह से उन दिनों तरीकाकार था कि जब सजाए मौत हो जाती थी तो अगले दिन या उससे अगले दिन जो है वो आदमी को हैंग कर दिया जाता था। लेकिन वो सजा के अंदर 2 महीने का जो है वो ताखीर दी गई। नतीजा यह हुआ कि कुलभूषण का जो ये केस था वो आलमी अदालत के अंदर चला गया। आलमी अदालत के अंदर आज तक कश्मीर के ऊपर तो उन्होंने कुछ नहीं निकाला। जो आपके सामने है, नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट किया ढाका के ऊपर में कि जी मुक्ति भानी के पीछे हम लोग थे, आरएसएस थी, हिंदुस्तान था, और पाकिस्तान को तोड़ने में उसका किरदार अदा किया। उस पे जो है आज तक की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है कोई काम नहीं किया। बहरहाल मकसद ये है कि आज अगर ऑपोजिशन ये शोर मचा रही है तो ऑपोजिशन को ये भी याद रखना चाहिए कि अदालत का रास्ता दिखाने वाली भी उस वक्त की उनकी अपनी हुकूमत थी, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसको किसी सूरत भी बरियज़मा करार नहीं दिया जा सकता। वजह यह है कि क्या पाकिस्तानियों का खून इतना सस्ता है कि कोई आए दहशत गर्दी करे और उसके बाद उसका केस इतना हाई फाई कर दिया जाए, उसके बाद वो कहें बाकायदा अभी ये जो चंद दिन पहले मुलाकात हुई, काउंसलर एक्सेस हुई, 2 लोगों को मुलाकात का मौका दिया गया, उनकी फैमिली को भी, वो मुलाकात के बाद जो है वो उन्होंने कहा कि दरमियान में कोई शीशा नहीं होगा, वो शीशा हटा लिया गया। उन्होंने कहा उस कमरे में कैमरा नहीं होगा, कैमरा हटा लिया गया। लेकिन फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आया कि जी वो जो 2 अहलकार थे भारतीय सफारत खाने के, वो घबरा के बाहर निकल गए। मुझे ये नहीं समझ आई कि घबराए तो आप हैं जो उनकी हर शर्त जो है वो मानने के लिए तैयार बैठे में। मसला ये है कि कुलभूषण यादव को अगर आपने छोड़ दिया बगैर फांसी के, तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि सुषमा स्वराज की वो बात सही साबित हो जाएगी जिसमें उन्होंने कहा था कि कुलभूषण जो है वो भारत माता का बेटा है, और हम हर सतह के ऊपर जाएंगे उसको बचाने के लिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, किसी हद को पार करना पड़े। और आज वो चीजें जो है वो नजर आना शुरू हो गई हैं। अब होगा ये, अगर आप नट शेल में मुझसे पूछें, मैं जरा सीधी बात करने वाला आदमी हूँ, जी बिल्कुल, कि नट शेल में यह है कि कुलभूषण को कुछ अरसे के बाद जो है वो उम्र कैद हो जाएगी, थोड़े दिन उनका जो है वो केस चलेगा, उसके बाद वो उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी। 3-4 साल के बाद जो है वो उनको बाइज्जत जो है वो अपने मुल्क ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिस तरह से माजी में सुरबजीत सिंह कश्मीर सिंह को जो है वो किया गया। नतीजा यह हुआ कि एक आदमी ने 28 लोग मारे थे, दूसरे ने भी कोई इसी किस्म के मारे थे, और पाकिस्तान में वो शहीद करके लोगों को दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में वो चलते बने। बाद में उन्होंने कहा हम भारतीय फौज से ताल्लुक रखते थे और हमें नाज है इस बात के ऊपर। जब वो भारत पहुंचे तो उनको जो है बाकायदा गन सलूट मिला, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनको जो है हार पहनाए गए, और उनको कहा कि जनाब ये हमारे हीरो वापस आ गए जिन्होंने पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाई की। इससे पहले आपको बेटा याद होगा कि हमने ये भी देखा कि जब अभिनंदन का वाकया हुआ तो अभिनंदन का वाकया एक बहुत ही खतरनाक वाकया था।
अभिनंदन जो था वो तो बाकायदा भारत का जहाज इस्तेमाल कर रहा था और जी बगैर वीजे के आया था, जी वो फौजी हैसियत में आया था, वो बमबारी करके गया, उसने जो है सरकारी तौर से लोगों के ऊपर फायरिंग की और वो जो है वो पाकिस्तान की सरहद को बगैर किसी वीजे बगैर किसी इजाजत के पार करके आया, लेकिन आपने 24 घंटे के अंदर उसको जो है वो वापस कर दिया, ये कह के कि जी इसके ऊपर जनीवा कन्वेंशन जी और जेनेवा ऑन कन्वेंशन, प्रिजनर जो है जी वो उसका इतलाक होता है। अब आपकी इतलाक की A21 के जरिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जनीवा कन्वेंशन ऑन प्रिजनर जो है वो तो 1964 में लागू हो गया था, तो फिर 1971 में जब हमारे कैदी बने 42,000, तो जी क्या वो 2.5 साल के बाद नहीं आए? क्या सही उनको जो है किसी ने वो सहूलत दी जो अभिनंदन को मिली? तो सही हमें उसका जवाब नफी में मिलता है। सही सिपाही मोहम्मद हुसैन जिनकी जबान काट दी गई, जो निशाने हैदर जिन्होंने जो अपनी जाने पाकिस्तान के लिए नजराना पेश कर दी, वो फौजी जो हमारे शहीद होते हैं मैदान जंग के अंदर और दुश्मन की कार्रवाइयों में लाइन ऑफ के ऊपर, उनके खून को आप क्या जवाब देंगे? बात तो सही ये है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और जिस मुल्क के अंदर भी आप गद्दारों को और ऐसे लोगों को सजाएं नहीं देते, नतीजा ये निकलता है कि हौसला का आइंदा भारत माता से लोग आएंगे और दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करेंगे। अगर इसको आप इसका निशान बना देंगे तो भारत को ये कान हो जाएगा, उनके जासूसों को ये कान हो जाएगा कि पाकिस्तान में जो जाएगा और वो पकड़ा गया तो वो फिर सजाए मौत से बच नहीं पाएगा। आइंदा भारत से भी जासूसों को आंधे हुए एक दफा उनको कान हो जाएंगे, उनको समझ आ जाएगी, उनके हौसले टूट जाएंगे। जी अच्छा अब्दुल हमीद गुल साहब, बस लास्ट ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये बताएं कि ये जो मूव हुकूमत का हुआ है कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, जिस पे बहुत ज्यादा आप ऑपोजिशन सीखपा भी है और एनआरओ की बात हो रही है कि आप ये एनआरओ दे रहे हैं एक तरीके से टेक्निकली, तो आप इस मूव को किस तरह से देख रहे हैं? ये आपको सही लगता है या आप समझते हैं कि ये गलत मूव था और इसको करेक्ट करने के लिए क्या कर सकती है हुकूमत? मैं समझता हूँ कि आप कितना लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, जी क्या वो खुश हो जाएंगे? क्या कुरान को गलत कह दें नौजुबिल्ला जी कि यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, हनूद आपके दोस्त नहीं हो सकते? अब आप कुरान की आयतों को अगर झुटलाएंगे तो फिर आपके लिए कभी भी मस्बत नहीं निकलेंगे। मसला यह है कि आपने पूरी दुनिया की तवज्जो दिलाओ नोटिस कर लिया, आपने जिस दिन अभिनंदन को वापस किया, बजाय इसके कि वो एहसान मंद होते, उन्होंने आपके 4 फौजी उसी दिन शहीद कर दिए। बिल्कुल उसके बाद जो है वो कश्मीर पे एक दिन उन्होंने कर्फ्यू में नरमी नहीं की। आप इंटरनेशनल दुनिया को रोते फिर रहे हैं, आप रोजाना ये कहते हैं इंटरनेशनल दुनिया है तो वो जो है हमारी तरफ तवज्जो दे। ओआईसी के पीछे आप पड़े रहे, जाके उसी ओआईसी में सुषमा स्वराज को बुलाया गया और उनको इज्जत दी गई और उन्होंने वहां तकरीर की, जो इस्लामिक कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आप जो है वो अब उनको कितना खुश करने की कोशिश करेंगे? नतीजा वो जो है वो गायब की कुर्बानी कर देता है, वो वहाँ गौ रक्षा की वो चलाते हैं। आप अगर गाय की कुर्बानी करें, लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, वहाँ हमारे मजहब का वहाँ जो है वो धज्जियां उड़ा के रखी गई, कश्मीरियों की असमतें जो है वो लूटी गई, कश्मीरियों की जो है वो खून की होली खेली गई, 1,25,000 आदमी शहीद कर दिए गए, 38,000 जो है वो कैदी हैं मुख्तलिफ जेलों के अंदर, 7,500 वो लोग हैं बच्चे जिनको पुलिस कस्टडी के अंदर बहिमाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया, और 14,500 वो औरतें हैं जिनकी इज्तिमाई इस्मत दरी हुई है। मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट मौजूद है। लेकिन आप जो है वो उनको खुश करने के लिए इससे क्या फायदा होगा? क्या भारत आपको, क्या अमेरिका का पहले आपने कहा कि मैं ट्रॉफी जीत के आया हूँ, वो कौन सी ट्रॉफी थी जो जीत के आए? क्या आपको FATF में रिलैक्सेशन मिली? क्या वो कश्मीर के ऊपर रिलैक्सेशन मिली? न्यूक्लियर क्लब में मेंबरशिप मिली? आपके कर्जे खत्म कर दिए गए? आपको मोस्ट फेवरेट नेशन जो है इकोनॉमिकली डिक्लेयर कर दिया गया? इन शॉर्ट के ये मूव सही नहीं है हुकूमत का। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर तजज़ियाकार सरबराह जवानाने पाकिस्तान कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे। जी इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।